پروگرام شام ڈھلے کے ساتھ آج پھر آپ کا ہوسٹ ارشد اوان، اور آج ہم نے ایک بہت ہی معروف شاعر جناب رئیس وارثی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم رئیس وارثی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب، اور آپ جو ہے یہاں نیو یارک کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، اور آپ دونوں معزز مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں پروگرام شام ڈھلے میں۔ اور ناظرین کرام، رئیس وارثی صاحب جو ہیں نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ ایریاز کے علاوہ یو ایس اے، کینیڈا اور دنیا کے اور مختلف ممالک میں اپنے شاعری کا لوا منوا چکے ہیں۔ بڑے بڑے گلوکاروں نے ان کو گایا ہے، اور کچھ اس کا نمونہ ہم پیش کریں گے اپنے پروگرام میں بھی۔ اور آئینہ ہوں میں آپ کا مجموعہ کلام ماشاءاللہ، اور آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ رئیس جرت اظہار میرا ورثہ ہے، قصیدے مجھ سے کسی شاہ کے لکھے نہ گئے، ماشاءاللہ۔ تو کچھ بتائیے کہ آپ نے شاعری کب شروع کی، کس عمر میں، اور پھر کیا کچھ ہوا، یہاں تک کیسے پہنچے، ادب کی لیے آپ نے یہاں پہ کیا کیا خدمات سر انجام دی، کچھ موٹی موٹی باتیں دیکھنے والوں کی نظر کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا، موسٹ ویلکم، اور ناظرین سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ جی، جب یہ جو سوال ہوتا ہے نا شاعری آپ نے کب شروع کی، اب یہ اس کا کوئی دن تاریخ تو ہوتی نہیں ہوتی، مطلب جی، کہ بھائی آپ نے کتنے بج کے کتنے بج پہ شروع کیا ہے نا، ہاں، تو ہوتا ہی ہے۔ اس کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ مطلب ایک وہ زمانہ آپ زمانے کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے لڑک پن میں شروع کی۔ اچھا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا میرے بارے میں جن لوگوں نے پڑھا ہے، جی، میرا تعلق جو ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے ہے۔ میرے والد محترم حضرت ستار وارثی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائی کے پاکستان کے نامور نعت گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 5 مجموعہ کلام اچھا، ان کی شائع ہوئے، اور پاکستان کے بڑے نعت خوانوں نے اور دیگر زبردست، گلوکاروں نے ان کے کلام کو، عرفانہ کلام کو بہت گایا ہے۔ اور میرے بڑے بھائی سعید وارثی صاحب، ڈاکٹر سعید وارثی صاحب، ان کے بھی 4 مجموعہ کلام ہیں، 3 شاعری کے ہیں، ایک نثر میں ہے۔ ان سے چھوٹے بھائی میرے یعنی کہ رشید وارثی صاحب، جو میرے بڑے دوسرے نمبر کے بڑے بھائی تھے، جی، وہ صاحب دیوان شاعر، اور ان کی تحقیق کے اوپر نعت کے حوالے سے ان کا جو ہے بڑا کام ہے، اور پاکستان کے موقع ادبی جرائد میں، اخباروں میں اور جنگ اخبار وغیرہ میں ان کا ایک سلسلہ جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، تو ان کی بھی کئی کتابیں ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ایک اثر، زیر اثر رہا فیملی کے، ہماری والدہ کو بڑا ذوق، چچا کو، بھائیوں کو، بہنوں کو۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اس اثر میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے، تو آپ کی طبیعت میں روانی آ ہی جاتی ہے۔ بے شک، تو بل وہ بچپن سے بس 8ویں 9ویں کلاس میں جو عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس جانب راغب ہوئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اپنی کوشش جاری رکھی، جو آج تک جاری ہے۔ تو آپ لکی رہے؟ نہیں، لکی نہیں، اس بارے میں نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی جو اپنی عملی زندگی ہے نا، اس میں اگر آپ وقت کو تقسیم کریں اور ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ کون سا وقت فیملی کے لیے، کون سا آپ کی کھیل کے لیے، کون سا آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، کون سا آپ کا سونے کے لیے، مطلب یہ ایک تقسیم ہے، اور اس توازن کو برقرار رکھنا ہی جو ہے نا، وہ آپ کا ایک بڑا کڑا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بڑے بھائی تھے، پی ایچ ڈی تھے، 3 سبجیکٹ میں ماسٹرز تھے، دوسرے بھائی تھے رشید والے صاحب، ایم فل کیا نعت کے حوالے سے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے پوری زندگی میں سارے بہن بھائی نے مکمل تعلیم پہ توجہ دی، ڈگری حاصل کی، اچھے جگہوں پہ کام کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں جب ایک آدمی اگر فل ٹائم شاعری کی طرف چلا جائے گا نا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی کہ آپ کی ضرورت ہے معیشت کے حوالے سے، اور آپ کی دنیاوی جو آپ کی ضروریات ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس ایک ہنر، تعلیم یا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے وسائل میسر ہوں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیز چونکہ جاری رہی، تو ذوق ایسے علم کی باتیں جب آپ کو دیکھیں، شاعری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور ہر چیز پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، جب تک آپ کے پاس بہت اچھی معلومات نہیں ہوگی، بہت اچھے الفاظ نہیں ہوں گے،
डिक्शन नहीं होगा आपके पास, तो एक आप अच्छा शेर नहीं कह सकते. उसके लिए सबसे पहला काम है हर उम्र के हिस्से में कभी ये समझना चाहिए कि तकमील हो गई है. आप हुसूल इल्म के लिए हर वक्त जो है जद्दोजहद करें. जितना आप मुताला करेंगे उतना आपके लिए अच्छा बेहतर है, उसको आपको अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छी बात है. ऐसा करते हैं, बातें चलती रहेंगी, कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए, क्योंकि हमारे देखने वाले जो हैं आपको जल्दी में लग रहा है मुझे. नहीं, वो ये होता है कि कुछ थोड़ा सा आपकी ज़ुबानी, या अगर आप कहें तो आपका कुछ गाया हुआ कलाम थोड़ा सा. देखिए, मैं आपका मेहमान हूँ. आपकी जो हर बात को जो मुझे फॉलो करना है, जो आपके लिए मुनासिब हो वो आप कीजिए. मैं आपके साथ हूँ. आप मेरे साथ हैं जी, और बहुत खुशी आपके साथ है. सही है. तो रफ़ाकत साहब ने जी जो मेरी गज़ल गाई गाइए, वो सुनाना बहुत पसंद आई होगी. उसे भुला के भी यादों के सिलसिले न गए. तो ये कौन थे, किसे आपने पहले याद किया फिर बुलाया? बुलाया नहीं, अभी भी याद करता हूँ. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा. क्या हो गया? क्या हो गया? वो अब लेकिन नाम आपने नहीं कहा पूछना, ना कि मतलब- उसे भुला के भी यादों के हाँ। सिलसिले न गए. जी 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 जी. तो अभी जी, वो सिलसिले बरकरार है. बरकरार है. क्या बात है. ऐसे भी खुश नसीब होते हैं. जी जी माशा. हाँ जी. क्योंकि यादों के सिलसिले नहीं, यादें तो आपको सरमाया है. वरना ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. तो उसने तोड़े ना. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अच्छा. हाँ, मैंने नहीं तोड़े. फराज तुम अपनी तरफ से तुम तो निभाते जाते था ना ऐसे. ना, जी जी सही. चले खैर. तो आप बात कर रहे थे, आप बहुत ही अदबी घराने से आपका ताल्लुक, आपके आबा व अजदाद और भाई और चचा, सब लोग, आप बस आपके वालिद साहब. तो जाहिर है, कहते हैं वो एक पंजाबी का एक की कहावत है कि बोर्ड के तले बोर्ड ही जमदा है ना. तर्जुमा क्या है? इसका कि जिस तरह का दरख्त हो ना, उसके नीचे भी उसी तरह का पौधा वो फलता फूलता है, तो उसका असर होता है. तो माशाल्लाह अच्छा लगा. और ये कि एक दुनिया मुतरफ है, आपको सुनती है, और जिन जिन मुशायरों में हमें भी, इमरान साहब आप जी, कुछ बिल्कुल. बोले कि हमें भी मौका मिला, बल्कि आपसे दोस्ती तो बाद में हुई, जब आपको सुना तो फिर देखा कि यार यहाँ ऐसे ही हस्तियाँ भी हैं. आप ऐसे कह सकते हैं कि एक घराने में जहाँ सूरज हैं, चांद हैं, जी जी, सितारे हैं, यानी कि बड़े बड़े यानी कि नाम और शोरा यानी कि इनकी फैमिली में से, तो उनमें अपना नाम पैदा करना. हाँ. तो ये रईस भाई को इसका नहीं, वो जाता है, यानी कि दुरुस्त है. इनके अंदर की जो लगन थी, जो यानी कि उस चीज़ जी, जी. इन्होंने अपनी बाहर निकाली है उसको, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल. अपनी शायरी का अंदाज दिया है, एक और एक बिल्कुल अलग अंदाज दिया है. जी, ये अपनी आप पहचान अपनी दिखाई. जी, जी, अपनी पहचान. और यानी कि इतने बड़े बड़े शोरा में, फैमिली के अंदर बड़े बड़े यानी कि नामवर बिल्कुल. शोरा के अंदर अपनी पहचान बनाना. जी. तो ये देखिए, ये मैं सारा वो इकबाल कासिम, अपने इमरान कासिम आपका बहुत शुक्रिया. मसला ये है कि मेरी पहचान अभी भी वही लोग हैं. जी जी मेरे बिल्कुल. वालिद, मेरे नहीं, वो तो भाई, हकीकत मेरा है, इसमें हवाला भी कोई वही शक है, नहीं. मेरी पहचान भी वही है. और ये बड़ी आपकी मतलब ये कि खुश अखलाक़ी कि आपने इतने अच्छे अल्फाजों से नवाजा. लेकिन मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर सकता हूं. बस मैं अपने शौक़ की तस्कीन के लिए शेर कहता हूँ. आप समझ गए मेरी बात? जी जी बिल्कुल नहीं. तो ये है कि बस आप लोग पसंद कर लेते हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्यों करते हैं. मेरे अंदर ऐसा कोई कमाल नहीं है. बाल नहीं, बहुत जब भी सुना है आपको, मोहब्बत है आप लोगों को. क्या कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है मुशायरों में जब आप मोहब्बत पढ़ते हैं, और लुत्फ़ आता है, और हर कोई आपका बड़ा यानी नाम लेता है, तो बहुत इज़्ज़त से. देखिए, हर वो आदमी जो आपकी इज्जत जी. करता है वो आपसे बड़ा है. जी बेशक. ठीक है ना. बेशक. तो मैं हमेशा उस आदमी की कदर करता हूँ जो किसी दूसरे की इज्जत करता है. जी. तो हर आदमी चाहता है उसकी इज्जत हो. ठीक है. लेकिन जो आदमी इज्जत करता है आपकी, आपको एहतराम देता है, जी. पजीराई देता है, वो काबिल एहतराम है, जी बेशक. और आपसे बड़ा है वो. बेशक बेशक. बेशक. आप इतने अच्छे राइटर हैं. बहरहाल प्रोग्राम के अंदर लोग जो है ना, आपको जैसे और जगहों पे हमने आज सुना, बहुत से लोगों ने सुना, पहली दफ़ा तो आपको देखा, फिर पहचान हुई, तो थोड़ा बहुत वो लोग जो बहुत से नए लोग हमें देख रहे होते हैं इस प्रोग्राम को, तो उनके लिए थोड़ा सा कलाम शायर बज़बान शायर थोड़ा सा हो जाए. जी.
میں آپ کو ایک ہم شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے آغاز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. چند تھوڑے سے بند سناؤں گا. ٹھیک ہے, آواز تھوڑی اٹھا کے رکھیے گا. تو جی اچھا ایک عمران وہ ہے حمد ہے, جی اس کے چند بند سنا رہا ہوں آپ کو. شور. کہ سر نگو ہے قلم, واہ کیا کرے یہ رقم. واہ. بارگاہ الہی میں سر نگو ہے قلم, جی کیا کرے یہ رقم. مستریف فکر ہے, واہ یہ عجب ذکر ہے. واہ واہ واہ. مستریف فکر ہے, یہ عجب ذکر ہے. واہ. ذہن الجھا ہوا, ہاں ہاں ہاں. علم سہما ہوا, واہ لفظ جھجکے ہوئے, حرف بکھرے ہوئے. کیا بات ہے. ہے پریشاں زباں, اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں. سبحان اللہ. اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں. یہ زمیں آسماں چاندنی کہکشاں, جی لوح و کرسی قلم واہ اہل جاہ و حشم. اس کی تخلیق سب, وہ تو سب کا ہے رب. بے شک. صاحب کن فقاں, اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں. میرے بس میں کہاں. واہ. بہت اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں. جی تو یہ ہم شریف تھی. میں آپ کو چند غزل کے شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جی زیادہ تر جو میری شاعری ہے وہ گائی گئی ہے. ٹھیک ہے. میرے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں, اور پاکستان کے اور ہم سب کے فخر پاکستان جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں غلام علی صاحب, جی اسد من علی خان صاحب, ٹھیک ہے. حامد علی خان صاحب, ٹھیک ہے. کلاسیکل. اور ہاں پرویز مہدی صاحب, واہ. شمسا قبر, جی ہمارا چنا, حمیرہ چنا, جی رفاقت علی خان, اقبال قاسم, جی فیروز اختر صاحب. انڈیا میں ادت اچھا. نارائن اور سادھنا سرگم نے, اچھا. جی جی ان لوگوں نے گئے. یوٹیوب پہ ایکسس ہے, آپ اس کو اچھا. ہاں اس کو آپ واہ. دیکھ سکتے ہیں. کیا بلکہ بات ہے. ایک فلم تھی ہم تم اور مام, اس کے گانے میرے لکھے ہیں. اچھا. تو ادت نارائن اور ادت سادھنا نارائن نے سرگم کون سا گایا تھا. ہے. ایک لڑکی میری زندگی بن گئی. اچھا. آپ چاہے تو اپنے ناظرین اور سامعین کو جی جی دکھا وہ اس سکتے کو ہم تھوڑا وقفے میں نکال لیں گے. اچھا, غزل کی چند شعر آپ کو میں سنا جی دیتا ہوں. جی جی جی. بلند اپنی نہ پرواز ہاں اس قدر رکھنا. بلند اپنی نہ بلند اپنی نہ پرواز اس قدر اس قدر رکھنا واہ کہ ایک جرم ٹھہر جائے بالوں پر رکھنا. واہ واہ واہ. کہ ایک جرم ٹھہر جائے بالوں پر رکھنا. جی. نہ اعتبار کسی پر بھی عمر بھر رکھنا. نہ اعتبار کسی نہ پر بھی اعتبار کسی پر بھی عمر بھر رکھنا. رکھنا. تمہیں پسند ہے گر خود کو معتبر رکھنا. واہ واہ واہ. تمہیں پسند ہے اگر گر خود کو معتبر رکھنا. یہ حوصلے تیرے آشفتہ سر ہی رکھتے ہیں. یہ حوصلے تیرے آشفتہ سر ہی رکھتے ہیں. ہزار کار جنو ہو تیری خبر رکھنا. واہ واہ واہ. ہزار کار جنو ہو تیری خبر تیری رکھنا. خبر رکھنا. واہ. گیا ہے وہ تو نہ آئے گا لوٹ کر, لیکن واہ. گیا ہے وہ تو نہ آئے گا لوٹ کر, لیکن چراغ جلتا ہوا یوں ہی بام پر رکھنا. چراغ جلتا ہوا یوں ہی بام پر رکھنا. پھر پڑھیے مقرر ارشاد. بہت خوب. جی. گیا ہے وہ ہاں ہاں تو نہ آئے گا لوٹ کر, لیکن ہاں ہاں ہاں. چراغ جلتا ہوا یوں ہی بام پر رکھنا. بام پر رکھنا. واہ کسی کا مقدر ہے کہکشاں کا دیار. واہ واہ واہ. کسی کا مقدر ہے کہکشاں کا دیار. واہ. کسی کو میسر ہے چشمے تر رکھنا. کسی کو میسر ہے چشمے تر رکھنا. واہ. بہت کٹھن ہے محبت کے مرحلے پھر بھی. بہت کٹھن ہے محبت کے مرحلے پھر بھی. خیال خاطر احباب عمر بھر رکھنا. خیال خاطر احباب عمر بھر رکھنا. واہ واہ واہ. کسی کے لمس کی خوشبو سکھا گئی ہے رئیس. ہاں ہاں ہاں. کسی کے لمس کی خوشبو سکھا گئی ہے رئیس. ہے کفر مشرب آوارگی میں گھر رکھنا. ہے کفر مشرب آوارگی میں گھر رکھنا. میں اس کی میننگ بعد بھی پوچھ لوں گا آپ سے. یا جب آپ کو ترجمہ
अच्छा, अभी तालीम बालगान भी करनी पड़ेगी। हाँ, हमें एजुकेट भी करना अच्छा, होगा अच्छा, ना अच्छा। जी। मशरबे आवारगी में घर रखना। घर रखना, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। देखिए कि किसी जी। शायर ने किसी सामे से पूछा, हम्म, ये बताइए कि जी। यकीन और वहम में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो सामे ने कहा, आप शेर सुना रहे हैं ये यकीन है, अच्छा, और हमारी समझ में आ रहा है ये जी आपकी वहम है। वहम है, जी ये आपका वहम। वहम है बिल्कुल। ये बस क्या हो, ये जिंदगी में यकीन भी आता है, कभी कभी वहम गुमा भी होते हैं। हाँ, नहीं वहम को तो ये चीजें भी हैं। हमारे एक बुजुर्ग शायर है, हाँ, हाँ। उनका बड़ा अच्छा एक कौल है, जी। कहते हैं भाई शेर समझ में आए ना आए आप लोग दाद दिया करें। दाद दिया, दाद दिया करें, हाँ, बिल्कुल। हैं? दाद दिया, दाद देने बनते हो। हाँ, वो तो देते ही रहते हैं। वो किसी एक लतीफ़ा देख रहा था, खाका था कोई मज़ाहिया, तो उसमें एक बंदा आता है, एक शायर साहब को, आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं, मैंने आपको चीचों के मलिया मुशायरे में दाद दी थी। कहते अच्छा 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 अच्छा। तो वो यानी इट्स टू टफ के इतने बड़े हजूम में एक बंदा दाद दे रहा है, तो आदमी हर एक को पहचान सके। पहचानता तो उसी को है जो साथ कभी बैठता है, या किसी के बारे में एक शायर कुछ लिखता है, उसको तो अच्छा पहचानता है। पहचाने की बात नहीं है, बात ऐसा है कि जब अदबी के जितने भी नुमाया लोग होते हैं ना, चाहे मकामी सतह पे जी, या आपके मुल्की कॉल आ सतह रही है। पे या बैन अक़वामी देख ले कोई सतह हमें पे। देखने वाला ना कॉल कर रहा हो। नहीं। अच्छा हाँ, तो उस हवाले से अच्छा, ये है वो, पता नहीं मैं क्या बात कह नहीं, रहा हम हूँ। सॉरी, हाँ। थोड़ा फिर कहिए। ये क्या पहचान की बात शायर कर और रहे थे? पहचान। पहचान, हाँ, तो मतलब ये एक होती है आपकी बिल्कुल मकामी सतह होती है, फिर जी। आपके शहर के सतह होती है, फिर आपके सूबे की या स्टेट की आपकी होती है, उसके बाद आपकी होती है बड़ी फिर नेशनल अक़वामी लेवल होती पे, है। हाँ जी, बिल्कुल तो आपकी जिस पहचान सतह पे बनती भी है। आदमी है, जी जी, उसकी जहाँ तक यानी कि उसकी पहुँच है, वहाँ तक उसकी रसाई है, वहाँ तक उसके सुनने और पढ़ने वाले मौजूद है। बेशक। लेकिन अच्छा शेर जो है वो सीना बसीना चलता है, उसको अपनी पहचान खुद रखता है। मतलब ये शेर जो है ना, बाज़ जो चीज़ें आपको पता ही नहीं लिखी किसने, लेकिन आप उसको पसंद करते हैं। सही बात। तो तो बहुत ये- दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने अपने आप से मंसूब कर ली होती हैं। हाँ, किसी का शेर जिसमें यानी कि गलत बयानी है। गलत बयानी ये होती है कि किसी का शेर होता है और किसी के साथ मंसूब किया जाता है। ये भी होता है। हाँ। जी आजकल तो माशाल्लाह जिस तरह फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे आप जी, देखते हैं, जी, हाँ। मोहसिन नकवी की शायरी होती है तो इकबाल के नाम से वो जुड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे का पता नाम ही जावेद नहीं। है, तो वो जावेद का नाम आता है, तो वो हाँ। समझते हैं कि शायद जावेद नामे में से ही है जी कुछ। जी, ऐसा ही है। तो थोड़ा सा और लोगों को इम्यूज किया जाए, शमसा कमल को देखते हैं, क्या ख्याल है? जी, बिस्मिल्लाह। आप कीजिए। तख्ती न कोई घर पे रईस अपने लगाओ, तख्ती न कोई घर पे रईस अपने लगाओ, बेवजह हर एक शख्स को, बेवजह हर एक शख्स को क्यों नाम बताओ, तख्ती न कोई घर पे रईस अपने
है तेरी याद का, रोशन है तेरी याद का एक तेज अलाओ, तख्ती न कोई घर पे रईस अपने लगाओ, तख्ती न कोई घर पे रईस अपने लगाओ, बेवजह हर एक शख्स को, बेवजह हर एक शख्स को क्यों नाम बताओ। रईस वासी साहब को सुना भी था, देखा भी था, माशाल्लाह। और उसके बाद इनका चर्चा होता रहा, और किसी न किसी बहाने से जी को सुनते रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काविश टीवी होने का सबूत दिया। अच्छा। आपकी काविशें रहती हैं कि हमेशा खूब से खूबतर लोग आए, बेशक और बेशक आपके जो बहुत है शुक्रिया। सुनने वालों को जी वो, और आज हमारे रईस वासी साहब आए हैं तो महफिल में जान पड़ गई है। बड़ी नवाजिश मिसबाह अलग मिसबाह साहब। मुझे दो बातें करनी है। जी जी, जी जी। फरमाइए। हमारे वालिद साहब जो थे, जैसे इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब तो बहुत ही मशहूर आदमी थे, तो हमारे वालिद साहब भी पढ़े लिखे आदमी थे, और जिस जमाने में पढ़े लिखे थे उस जमाने में उन्होंने फारसी में भी ऑनर्स किया था, उसके बाद उर्दू में उन्होंने एमए किया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमने क्या किया था, मैट्रिक में जी हमने आर्ट्स लेना चाहता था मैं, तो वालिद साहब का था कि आर्ट्स मैंने पढ़ा है, इसमें ज्यादा आगे नहीं जाओगे तो तुम साइंस पढ़ो। अच्छा तो उन्होंने मेरा दाखला साइंस में कराया, तो इंटर साइंस तो मैंने पढ़ा। फिर मैंने वो वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मैंने फिर एडवांस उर्दू ली बीए में। उसके बाद फिर अभी इंग्लिश लिटरेचर में मैं कर रहा था मास्टर्स, लेकिन मैं आधा कर सका था, यहाँ आ गया। अच्छा कहते थे, वो एक बात कहते थे रईस भाई जी जी जी। कि देखो पौधे दो किस्म के होते हैं, एक वो पौधा होता है जो क्यारी में उगता है, और एक पौधा वो है जो गमले में उगता है। हाँ हाँ। गमले का जो पौधा है वो क्यारी में नहीं उग सकता, और क्यारी का जो पौधा है वो गमले में बहुत कम शायद नादिर। लेकिन रईस भाई की शख्सियत ऐसी है जो गमले में भी खिल सकते हैं और क्यारी में भी खिल सकते हैं। क्या ये आपका अच्छे नजर है, बड़ी इनायत मोहब्बत आपकी, और अल्लाह ताला आपकी दरबार में आपकी सेहत और सलामती के लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया आपका। मिसबाह अलग साहब हमारे प्रोग्राम में बड़ी अच्छी शायरी माशाल्लाह। खुद भी पेश करते हैं। जी मैं कुछ ये कहना चाह रहा था, अगर आपके पास 1-2 मिनट हो नहीं प्लीज। तो मुझे भी जी इस फन से लगाव है, बेशक। मैं भी माशाल्लाह। शायरी कर लेता हूँ, जी लेकिन मेरा जो शायरी का धारा है वो दूसरी तरफ। मैंने नौशाद साहब पे शायरी की, मैंने मोहम्मद रफी साहब पे की, लेकिन मैंने एक जन्मदिन हुआ था, मेरा बर्थडे हुई थी, तो उस पर मैंने कुछ अशार लिखे थे रईस भाई, आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूँ। जी 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 जनाब। इरशाद। जिस जमाने के हैं हम लोग, उस जमाने में जन्मदिन तो होता था, मनाया नहीं जाता था। अच्छा वाह अच्छी लाइन है। हाँ जी। जन्मदिन पर कौन आएगा, साथ अपने क्या लाएगा, बताया नहीं जाता था। इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतनी कमाई भी नहीं थी। मेरे अब्बा मेरी अम्मा बहुत सा प्यार देते थे, हमें हर रोज खुशियों का नया उपहार देते थे। माशाल्लाह। जलेबी दूध आता था, नमक पारा भी आता था, हंसी खुशियों की बारिश में मजा भी खूब आता था। वाह क्या बड़े होने लगे हम सब, बहुत छोटी लगी दुनिया, खरी सुनने की ख्वाहिश में बहुत खोटी लगी दुनिया। समुंदर पार हम आए नई दुनिया बसाने को, मुकद्दर आजमाने को, बहुत पैसा गंवाने को। क्या कहने। वाह बहुत खूबसूरत। नई कदरों से मेरी आशनाई हो गई थी अब, और नए लोगों से कदरे रूनुमाई हो गई थी अब। बहुत खूब। महीने में बस 1-2 बार अब्बा भी बहुत याद आए, और
है साहब का शेर है कि जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए। वाह, माँ बाप से बस फोन का रिश्ता ही रह गया, और ये खून का रिश्ता भी बारिश गफलत में बह गया। बहुत खूब। मेरे दिल ने कहा अब्बा से आशीर्वाद ही ले लो, तरक्की तुमने जो की है तुम उसकी दाद ही ले लो। वाह, कहीं से फोन की घंटी को सुनकर जब उठाया फोन, कहा मैंने हेलो, और पूछा बताइए आप हैं कौन। वो बोले इस जगह को कहते हैं गफ्फार नर्सिंग होम, इसमें हर एक फ्लोर पे हैं 8 सिंगल रूम। अब्बा का नाम लेकर पूछा जो उनका हाल, कहने लगा जुमे को हुआ उनका इंतकाल। हाय हाय हाय, जिंदगी डूब गई फिर से उसी दूध जलेबी में, और मैं दफन हो गया अपनी इस खुद फरीबी में। जिस जमाने के हैं हम लोग, उस जमाने में जन्मदिन तो होता था, मनाया नहीं जाता था। वाह, बड़ी मेहरबानी। बड़े अच्छे तासुरात आपके, बड़े जो है हसासियत से भरपूर आपकी लाइनें थी, बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह। नहीं, मैंने कहा कि मैं जो है उसको अपने आप तक महदूद न रखूं, और एक मुस्तनद शायर आए हैं तो नहीं गोश गुजार कर दूं, नहीं, तो मैं इसे अपनी दादी समझूंगा। दादी है साहब, अपने इतने हसास मौजू के ऊपर इतनी खूबसूरत लाइन्स लिखी हैं आपने, और बाद मकाल पे तो बड़ी इनकी जज्बातियत है, मतलब, और ये कि बहरहाल बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत इस शुक्रिया। मंजिल से गुजरना बड़ा कर्ब का मरहला होता है। बहुत खूब। बहुत आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और खुदा काविश टीवी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। मुझे 8 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद मेरी जिंदगी जो है वो काफी महदूद हो गई है। तो ये रेडियो और टेलीविजन में हर जगह के, ह्यूस्टन के, डैलस के और यहाँ के सुनता हूँ, और टीवी पे अपने खासकर रवान साहब के कार्यक्रम को, ऊपर वाले का करम है इन पर जब ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। सही जी है। बेशक, माशाल्लाह। बेशक। बहुत एक- खूब। बहुत शुक्रिया। वो एक नातिया शेर है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। जी बिल्कुल, और बात बनी रहेगी। जी बेशक, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कदम कदम पे लहू की बारिश है, शहर जामे शदीद लोगो। वाह वाह वाह, कदम कदम पे लहू की बारिश है, शहर जामे शदीद लोगो। वाह, सरों की बाजी लगी हुई है आज मख्तल में ईद लोगो। वाह, हाय हाय हाय, सरों की बाजी लगी हुई है आज मख्तल में ईद लोगो। ज़बां पे बंदिश, लबों पे पहरा, सनानो खंजर की झंझनाहट। वाह वही है माहौल करबला का, वही है रस्ते यजीद लोगो। वाह, वही है माहौल करबला का, वही है दस्ते यजीद लोगो। ये मशवरा है कि अपने घर के हर एक दरीचे को बंद रखना। ये मशवरा है, ये मशवरा है कि अपने घर के हर एक दरीचे को बंद रखना। है ये तो सर सर के चंद झोंके, चलेगी आंधी मजीद लोगो। है ये तो सर सर के चंद झोंके, चंद झोंके, चलेगी आंधी मजीद मजीद लोगो। लोगो। कलम की हुर्मत की लाज रखना, वाह, कसीदे साहब के तुम न लिखना। कसीदे साहब के तुम न लिखना। सरे कशीदा न झुकने पाए, वाह। न बनना जिनसे खरीद लोगो। वाह वाह वाह, ये कुंजे जिंदा में सोचते हैं, जो कैदी अपने ज़मीर के हैं। वाह, रईस जंजीरे जबर टूटे, वाह। नई शहर की हो दीद लोगो। रईस रईस, ये कुंजे जिंदा में सोचते हैं, जो कैदी अपने ज़मीर के हैं। वाह वाह वाह, रईस जंजीरे जबर टूटे, वाह, नई शहर की हो दीद लोगो। नई शहर की होती तो वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत उम्दा। शुक्रिया। इमरान भाई भी माशाल्लाह। मैंने तो इनके अंदर एक काफ़ी, मैंने इनको जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, तो मैंने इनके अंदर एक इनकलाबी शेर भी देखा है। एक इनकलाबी शायर जो है ना, वो इनके अंदर मौजूद है। गज़ल से हट के भी इनके अंदर एक किस्म का, आप कह सकते हैं, जिस तरह हमारा जैसे सियासी बैकग्राउंड है, तो हम इस चीज़ को यानी कि वो बहुत करीब से देखते हैं। ठीक, तो इनके अंदर एक अच्छा इनकलाबी शायर भी है। ठीक है, शायर इनकलाब जो होता है ना, वो भी इनके अंदर एक मौजूद है। उसका एक आप कह सकते हैं कि इनके अंदर वो चिंगारी है।
बिल्कुल और वो इन्होंने अपनी उसको यानी कि शोले की शक्ल में नहीं लाया, लेकिन वो चिंगारी नजर आती है इनकी। आप तहरीरें देखें, इनके अंदाज देखें तो आपको नजर आता है इनके अंदर एक खूबसूरत और एक अच्छा इनकलाबी शायर भी है। मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया। एक लिखारी जो होता है उसका कलाम ही वही बहुत सबसे बड़ा शोला होता है। आदमी जो एक सोसाइटी का हिस्सा होता है ना, जी समाज का हिस्सा होता है, जी और अच्छा शायर वो होता है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुशाहिदा करे, ठीक है मुशाहिदा हो, ठीक है उनमें आने वाले तगय्युर का, तब्दीलियों का, ज़्यादतियों का, जी अच्छाइयों का, बुराइयों का अल्फाज से अहाता करे, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है अब आपने ये सोच रखी है कि आपने हर चीज़ जो है इनकलाबी यानी कि हुकूमतों के ख़िलाफ़ या किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ ही आपने लिखना है, वो भी गैर फितरी है। ठीक और अगर आपने सिर्फ लबुलख्सार की बातें करनी है, सिर्फ हुस्न की परस्तिश करनी है आपने, या उसकी सताइश करनी है आपने, वो भी इतना अच्छा रवैया नहीं है। मतलब सोसाइटी में रहते हुए आपकी जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा है आपने उससे गैर फितरी नहीं कहा, किसको हुस्न इश्क हुस्न की सताइश अच्छा, आपकी मैंने देखा दिलचस्पी इस मौजू में ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ ख़वातीन का मसला हो, इंसानियत का मौजू हो, तो वो उस चीज़ की वजाहत तो मैंने कर दी। एक चीज को और कहा कि गैर फितरी है। अक्सर ये होता है नहीं, कि गैर फितरी इस माने में काम अखबारों में ना एक लाइन आती थी कि फलां ने गैर फितरी फेल कर दिया, तो वो कुछ लोगों ने कहा जी कि ये तो फितरत से मजबूर होके किया, तो लिहाजा ये फितरी फेल है। तो नहीं समझा नहीं। अच्छा खैर, आप कह रहे थे ना कि मैंने कहा कि एक चीज को तो आपने गैर फितरी नहीं फेल मैंने नहीं कहा। ये नहीं कहा। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, आप खुद हैं, जी जी आप जब सुबह उठते हैं जी बिस्मिल्लाह से दिन का आगाज करते हैं, आपका मूड कुछ और होता है, हम्म, नाश्ता करने के बाद आपका मूड कुछ और होता कुछ है, और होता है, जॉब पे जब पहुंचने के बाद का अलग मूड होता है, जिस दिन चेक मिलता है उस दिन का बिल्कुल अलग होता है, सही बात है। सही ना। जिस दिन प्रमोशन होती है, नहीं कि आपके अंदर खुद तगय्युरात होते हैं, तब्दीली होती है, मिजाज की होती है, कभी आपको गुस्सा है, कभी आप खुश है, कभी आप डिप्रेस है, कभी आप मायूस। जी जी तो ये तो इंसान की मतलब जबलत में शामिल है ना ये चीज़ तो। जी जी और जो इर्द गिर्द माहौल है उसका आप मुशाहिदा कर रहे हैं, उसको अल्फाजों में ढाल दें आप, जिसमें लोगों ने देखा, अपने कौमी तराने भी लोगों ने लिखे हैं, वो जज्बे से शायर के, वो इनकलाबी शायर भी थे, कौमी तराने भी लिखे उन्होंने, जी जी लोगों ने कौमी थे, उन्होंने इनकलाबी शायर थे, उन्होंने नाते भी लिखी है, उन्होंने कव्वाली भी लिखी जी, है। जी, तो मतलब ये एक अच्छा है रवैया ही कोई माहौल के हिसाब से, हाँ, लेकिन है कि वो जिस तरह के माहौल है यानी कि उस हिसाब से उन्होंने अपना हाँ, जैसी ज़रूरत है, जरूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अगर कहीं जुल्म जबर हो रहा है तो उन्होंने ऐसी इनकलाबी शायरी करके लोगों की दिलजोई की है, ताकि वो लोग अपने आप को उनके अंदर जाने के एक लोगों को जगाने की कोशिश की है। शायर तो कोशिश करता है ना आपके बिल्कुल जज्बात के साथ ही। आपने ये जो पिछला कुछ अरसा गुजरा है जिस वक्त यानी वतन से बाहर के लोग जो थे, कुछ हालात ऊपर नीचे हो रहे थे, तो कुछ इस अरसे में कोई शायरी हुई जिसे अभी एक और प्रोग्राम में हम ताज़ा गज़ल कह रहे थे, ताज़ा तरीन, तो अभी कोई लेटेस्ट आपका कोई कलाम आपने जब तहरीर किया हो, कोई किसी खास देखिए मसला ये है से कि मजबूर मैं हो असल में किसी एक ख़ास मौजू के ऊपर कई सालों से काम कर रहा हूँ, अच्छा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला उसकी तकमील कर दे। तो मैं एक खुशखबरी सुनाऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जी, अभी मैंने जो है वो अपने आप को गोशा नशीन किया हुआ है, अच्छा, तो उसी हवाले से मैं आपको ताज़ा तरीन 2 शेर सुना देता हूँ। जी जी, न रखो दिल में उसे हमसे बरमला कह दो, न रखो उससे, न रखो दिल में उसे हमसे बरमला कह दो, वो बात कि जिसके सबब हमसे बदगुमा हो तुम, वाह, बहुत दिनों से तुम्हारा अता पता नहीं कुछ, मेरे रईस मेरे वारसी कहाँ हो तुम। वाह वाह, मेरे रईस मेरे वारसी कहाँ हो तुम, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, आपने आपका आईना हूँ मैं, इस किताब में किन किन बड़े शायरों ने, होता है ना कि आप जब एक बुक लिखते हैं तो उसमें आपके बारे में दूसरे शोरा भी अपना अपना व्यू देते हैं, तो किस किस शायर मेरी खुशनसीबी ये है जी। कि मेरी किताब कई एतबार से इनफरादियत का हामिल है। उसमें मेरा कमाल नहीं है, जी, जो हमारे सीनियर शोरा इकराम है, साज़ इकराम है, उनकी सरपरस्ती, उनकी मोहब्बत का दखल है उसमें।
यूँ उस किताब को मोतबर बनाने में बुनियादी तौर पर उन लोगों का हाथ है, जिनमें नुमाया जो शख्सियात हैं और दुनिया अदब की नामवर कदावर शख्सियात, हाँ हाँ जैसे मोहतरम अहमद अदीम कासमी साहब, माशाअल्लाह। उन्होंने फ्लैप लिखा बहुत अच्छा। जी फराज साहब ने मुख्तसर फ्लैप बहुत छोटा सा लिखा, लेकिन लिखा वो फराज साहब लिखते नहीं हैं। ठीक है उसके अलावा जनाब सैयद ज़मीर जाफरी साहब, माशाअल्लाह। इफ्तिखार आरिफ साहब, जी और डॉक्टर जमील जालवी साहब, वाह। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब, आइकॉन्स हैं सब। इफ्तिखार आरिफ साहब, हाँ। जनाब गोपीचंद नारायण साहब। गोपीचंद नारायण। और इसमें अच्छी बात मेरे लिए है कि इस किताब में उस वक्त इफ्तिखार आरिफ साहब अकेडमी ऑफ पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान के चेयरमैन थे, और अपने इंडिया के वो थे प्रोफेसर गोपीचंद नारायण साहब अकेडमी ऑफ लेटर्स। उन दोनों के जो है पैगाम है तफसीर उसमें शामिल है माशाअल्लाह। तो इससे ये मेरे अंदर काफ़ी तवानाई भी आई, और उनकी सरपरस्ती की वजह से इन लोगों ने बड़ा अच्छे और तफसीली आपके कलाम को बहुत से गुलकारों ने गाया भी। बताइएगा कि आईना हूँ मैं, इस टाइटल का इंतखाब आपने यानी कि किस, यानी कि आपके माइंड में क्या था कि यानी कि आपने इस चीज को चूज किया? हाँ, आईना हूँ मैं। वेरी रिलेटिव एंड गुड क्वेश्चन। ये बताऊँ मैं आपको, मेरी एक मिसरा है, गज़ल है, उसका एक शेर है, उसका ही मिसरा है। जी जी। यानी कि जिंदगी के राज को समझा हूँ मैं, जिंदगी के राज ये को मेरी किताब समझा का हूँ। पहले ही शेर है, पहली गज़ल का पहला शेर शेर। है। जी जी। जिंदगी के, मुझे शायद सही याद नहीं आ रहा, बाद में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी के राज को समझा हूँ मैं, हाँ टूट कर 100 बार आईना हूँ मैं। वाह। टूट कर 100 बार आईना हूँ। आईना हूँ मैं। तो आईने का असल में जो यहाँ मफहूम मेरे बारे में ये है कि मैं एक आईना हूँ अपने समाज का, जी जी। अपने इल्म फरासत का, अपनी सोच फिक्र का। हर शख्स होता है, जी जी बिल्कुल। ऐसे में भी एक हूँ। मैं एक आईना हूँ, उससे आप हम कलाम हो सकते हैं। अपने आप को मैं देख सकता हूँ मैं क्या हूँ, मतलब कई हवालों से बहुत मायने खेज ये मफहूम है। लेकिन आमतौर पे ये है कि मैं एक आईना हूँ, और आईने का मतलब ये जो आपको जो सच है वो आपको दिखा रहा है ना। आईना सच दिखाता है, ये मफहूम में ये माने भी है, मफहूम में। तो कई इस बार से क्योंकि कुछ चीजें आ रही थी मेरे माइंड में, मैं वो गुड आईना हूँ मैं जो है ना, वो एक आखिर उसको चूज करने का मकसद, ये बुनियादी मकसद ही है इसका। जी।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये 2 गाने हमने प्ले किए। उदित नारायण साहब ने एक गाना गाया था, एक लड़की मेरी जिंदगी बन गई, आपकी ज़िंदगी बन गई। और सबकी तो नहीं बनेगी, ऐसे मेरी ही बनेगी। एक टाइम पे एक अच्छा जी जी। चलिए, तो एक लड़की इनकी ज़िंदगी बन गई, एक गाना वो था, और दूसरा गाना था गजल थी, गज़ल थी अब हामिद कैसे अली पजीराई हो आशिफ तसरों की, आशिफ तसरों की। इस शहर में किल्लत है बहुत दीदा वरों की। दीदा वाह, वाह वाह, वाह, वाह। ऐसा तो नहीं है दीदा वाला। नहीं, आपको हटा के बोला नहीं। अच्छा, लेकिन आपको पता है बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदा दीदा वर पैदा, तो इसलिए किल्लत है ना। दीदा वर और चीज़ होते हैं, और मैंने बात की, मैंने दीदा वरों की बात ही नहीं की। हाँ हाँ, दीदा वरी की है। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए, दोनों करीब करीब हैं। हाँ जी, ये वरी एक में दूसरे आती के है, रिश्तेदार हैं। वो वरी में आती है। हैं? वरी में आती है, ठीक है। अच्छा जी, रईस वारसी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, और इत्तेफाक से हमारे चूँकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए थोड़ी सी फ्रैंकनेस आप प्रोग्राम में भी देख रहे बहुत होंगे। शुक्रिया। लेकिन अदब जो है इनका बहुत ही दिल के अंदर इतना गहरा है कि बता नहीं सकता। अभी बात कर रहे थे अदब की, तो मुझे आज ही इनसे बात हुई कि आप कह रहे थे कि मुझे वो कुछ लोग जब किसी बड़े को मिलते हैं तो झुक के पाँव को हाथ लगा के मिलते हैं। माँ बाप का एहतराम होता है ना, बुजुर्गों का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम। तो वो एहतराम जो है ना, वो एहतराम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा आहिस्ता ना, है ही नहीं, है ही नहीं। ना पैदा। तो हमें अब हाई हुई का ज़माना है, जी समझे नहीं। और वो जो आदात थे, जो तमीज़ थी, जो हमारे कवायद थे, जो हमारी तहज़ीब सकाफ़त थी, जो हमारी पहचान थी, जो दूसरे से हमें मोहतर बनाती थी, वो सब ख़त्म, ऑलमोस्ट जो है ना, जी खत्म होती। जी जी जी। आप एक कह सकते हैं कि वो की तारीख का हिस्सा बन के रहा। हाँ, तारीख़ आप ये कह सकते हैं माजी की बातें आप कहते हैं ना, जैसे माजी की बातें करते हैं, जी जी जी। तो वो माजी का हिस्सा ही रह गई है। बाकी छोटी छोटी बातों पे बाज़ का कोई बुजुर्ग नाराज़ हो रहे, कोई गुस्सा कर गए, या थोड़ी देर के लिए कि मैं चल किसी बच्चे से बात नहीं कर रहे, या तो वो फिर वो मैंने देखा कि घरों में या कोई और उनको कहता जा जरा प्यो दे पैर पहला है पंजाबी में, यू नो, इस तरह की बात। बदनसीबी यही है कि वो मैंने जितना अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया ना जी, हमारे यहाँ जो है ना सब कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ जो इखलाकियात है ना इसके ऊपर अगर कौम तवज्जो देती है ना अगर हमारी, जी, तो ये चीज़ मैंने देखे ये पूरी कौम को बिल्ड करने वाली बात होती है। आप पूरा मुआशरा बिल्ड करते हैं, आप नस्लें, एक नहीं जनरेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं। जी, तो ये चीज़ मैंने नोट की है कि हमारी जो चाहे आप कह सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात ही ऐसे रह गए, या बिल्कुल एक आप क्योंकि वो वहाँ एक जंगें कौम प्रस्ती चीज़ें इस कदर हम लोग डिवीजन में आए हैं ना वहाँ पे, तकसीम दर इस कदर तकसीम हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है अब तकसीम की गुंजाइश बाकी नहीं रही जी। तो ये इखलाकियात और हम जो माजी के किस्से और सिर्फ माजी की तरफ ही रह गए, हर चीज़ भूल भुला के बैठ गए। सही बात। और अब तो बिल्कुल ही तूफान बदतमीजी के हद तक चले गए हम लोग। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है बिल्कुल कौम, जिसे आप कहते हैं ना कि जहाँ अदब मर जाता है ना वहाँ कौम बिल्कुल मिट जाती है। तो हम बिल्कुल उस मिटने के करीब आए हुए हैं। बहरहाल कोशिश कर सकते हैं जी कि देखो मैसेज तो किसी भी आप किसी भी शक्ल में मैसेज आप शायरी की सूरत में मैसेज दे देंगे, आप अपना किसी सियासी हैं तो बयान की सूरत में दे देंगे, किसी भी एंगल से आप यानी कि अपना मैसेज आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक हकीकत यही है कि हालात जो है ना हमारे बिल्कुल उस तरफ गए हुए हैं कि इखलाकियात वगैरह नाम की चीज़ तकरीबन माजी की तरफ लौटना नामुमकिन बात है, नामुमकिन, पीछे तो मुड़ के देखा नहीं जा सकता। लेकिन है कि डिजिटल दौर आ गया ना अभी, वो खास तौर पे आजकल तो डिजिटल दौर है, इस चीज़ में तो आप यानी कि करीब ही नहीं जा सकते। हमने दिन बदलता है, मिनट बदलता है, आपकी यानी कि हालात बदले होते हैं, न्यूज़ बदली होती है। आज घंटे के अंदर न्यूज़ आपके लिए पुरानी हो जाती है। सही बात। वो दौर तो नहीं कि आप न्यूज़ चलती है तो महीने बाद भी नई न्यूज़ चल रही होती है और सारे मोहल्ले में शहर में शहर दर शहर, या रात का अखबार आता है अगले दिन सारी दुनिया वेट कर रही होती है। तो अखबार आएगा, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या हालात है हाजरा है, या दिन में एक दफ़ा रात को 8 बजे की BBC या 9 बजे की BBC की जो खबरें चला करती थी रेडियो पाकिस्तान पे, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा होता उसके लिए। तो वो चीज़ तो नहीं, अब तो हर घंटे के अंदर चीज़ पुरानी हो जाती है आपके लिए।
every other second कुछ ना कुछ नहीं नहीं बिल्कुल, अब तो बहुत आप एडवांस हो गए। बहरहाल बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ लाए, इज़्ज़त अफजाई, मेहमान नवाजी का शुक्रिया, मेहमान नवाजी का आपकी आमद का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। इमरान मेरा तो रईस भाई से खान जो साहब, अपना तारुफ रईस भाई से बाद में हुआ, मैं तो इनके बड़े भाईजान का बचपन से, अच्छा हाँ चंद एक इनकलाबी शेर थे तो उनके वो मैं बचपन से, वाह, तो वो मैंने के बचपन से यानी कि कहीं ना कहीं सियासी हालात की वजह से, क्योंकि वाले साहब का ज़ाहिर दादाजी का भी तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम तो वो चंद एक अशार जो थे ना वो कोट अक्सर करते थे। कोड करते थे। जी, जिक्र हुआ सुकरात का जब भी हाँ। जब भी चली मंसूर की बात, वाह वाह वाह, जरा- शहर के सारे झूठे बोले हमसे बढ़कर सच्चा कौन, हाँ, तो वो अक्सर जो ना उनको कोड क्या करता था, धूप की चादर सर पे सजाकर सहरा सहरा जाए चेहरा- कौन, जाए सहरा सहरा कौन, वाह अपनी अपनी सबको पड़ी है पूछे हाल हमारा हमारा कौन, वाह, जिक्र हुआ सुकरात के जब भी चली मंसूर की बात, शहर के सारे झूठे बोले हमसे बढ़कर सच्चा कौन, वाह, शहर सितम फिर शहर सितम है जहाँ की कीमत क्या होती, जी जी बिल्कुल, सब तीरों के गिनने वाले जख्म हमारे गिनता कौन, हाँ, समझे, लौट आई आवाज़ हमारी टकरा कर दीवारों से, शहर को लाहक शक्ल समात बात हमारी सुनता कौन, वाह, ये जी। बहुत खूब, शब खून मारने वाले सबको आखिर मारने वाले आखिर सारी बस्ती लूट गए, चीख रहे थे चीखने वाले लेकिन घर से आखिर निकला कौन, घर से आकर निकला, वो हमारे अंदर तो थोड़ा वो इनकलाबीपन था, तो हम जो इनकलाबी शायरी जो होते थे ना, जारब साहब हो गए, तो वो पे इनकलाबी शायरों को जो हम अपने बहुत करीब करीब तेरे हमारे दिलों में रहते, मंजर कशी होती है, जी जी यकीनन बिल्कुल ही, कोई ना कोई हालात ऐसे दरपेश आए होते हैं कि किसी वक्त फिर उस चीज़ को आप कलम बंद किया। कहते हैं ना कि तुम क्यों सियाह रात से खाइफ हो दोस्तों, वाह वाह, मत- तुम क्यों सियाह रात से खाइफ हो दोस्तों, माचिस की एक तीली अंधेरे की मौत है। हाँ, तो हम तो बिल्कुल है कि उस यानी कि अपने उस चीज़ को अपने माइंड में रखा होता था, ज़ाहिर अब हमारा एक वो अंदाज ऐसा रहा है सारा, तो ज़ाहिर उस फिर रईस भाई से फिर पता चला कि रईस भाई तो अपने सईद भाई के छोटे भाई हैं, ठीक है, तो वहीं से फिर ताल्लुकात आगे जी, जी। बढ़े, अच्छी बात है। नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह आइंदा किसी और ऐसे ही अच्छे शायर और किसी शख्सियत के साथ, और सियासी और समाजी कारकुन इमरान कासिम खान साहब जी भी हमारे यहाँ आए और ज्वाइन किया हमें, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्रोग्राम जो है हम इंशाल्लाह फिर रिपीट करेंगे, स्पेशली संडे को ज़रूर करेंगे, और ड्यूरिंग द वीक भी कोशिश करेंगे। और हमारे इस तरह के अदबी प्रोग्राम हमेशा रात को मगरिब की नमाज के बाद का जो टाइम होता है तकरीबन 9 बजे वो हम प्ले करते हैं, और अगर अदब से आपको दिलचस्पी है तो देखते रहिए काविश न्यूयॉर्क टीवी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।